एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. Now let's see what is symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition is basically the type of nutrition when two or more than two organisms with the help of each other survive. मतलब दो या उससे ज्यादा organisms एक दूसरे की मदद करके survival करते हैं. अब let's see कि कैसे. अब in some cases two or more than two different types of plants live together to fulfill each other's needs of nutrition. दो या उससे ज्यादा plants जो होते हैं वो एक दूसरे की को सपोर्ट करते हैं to fulfill their needs of nutrition. Protection, support, etc. Nutrition, protection, support, etc. Sometimes even by giving shelter with each other's help. This type of nutrition is called symbiotic nutrition. इस टाइप की न्यूट्रिशन को symbiotic nutrition के नाम से जाना जाता है. For example, कई बार फंजाई जो होता है वो it grows on plants. अब ये plants की specially on the root parts. अब ये जब when fungi grows on the plant, तो what does plant do? Plants जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन देता है फंजाई को. So basically the fungi takes nutrition from plants और इसके रिटर्न में it gives minerals and water from soil to the plants. So this is basically a give and take relationship that a plant and fungi has. Even fungi and algae. So ये दोनों भी basically symbiotic nutrition को support करते हैं. Fungi provides shelter and food to algae. Shelter and protection to algae, whereas algae in return provides food for fungi. So ये basically एक symbiotic relationship होता है when two and more than two plants connect with each other and support each other for each other's survival. Now let's talk about heterotrophic mode of nutrition. अब there are some plants that do not have chlorophyll in their leaves. अब वो plants जिनके अंदर chlorophyll नहीं होता है they feed on some other objects या some other microorganisms या फिर some other organisms for their nutrition. अब वो plants basically जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं heterotrophic. अब ऐसे दो अलग अलग टाइप के plants होते हैं. There are insectivorous plants and there are saprophytic plants. Insectivorous plants वो होते हैं जो insects को feed करते हैं. They have very beautiful attractive pink flowers. और whenever insects comes and sits on their plants, तो their flowers तो वो अपने फ्लावर को क्लोज कर लेते हैं एंड दे कीप ऑन सकिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंसेक्ट्स बॉडी टिल ऑल द न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्ब. वंस इट इज डन तो ये जो प्लांट की जो बॉडी है उसको बाहर फेंक दिया जाता है. अब सैप्रोफाइटिक प्लांट्स जो होते हैं ये डेड और डीकेड बॉडी के ऊपर फीड करते हैं. तो दोज ऑर्गेनिज्म हु फीड्स ऑन दोज प्लांट्स दैट फीड्स ऑन डेड और डीकेड बॉडीज दे आर नोन एज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स. Now let's see अगर हम obviously there are various nutrients that we take. नाइट्रोजन होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी बॉडी को जिसकी जरूरत पड़ती है. Now let's see अगर प्लांट्स के अंदर उन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है. Now talking about nitrogen, nitrogen is important content of protein, chlorophyll and chloroplast. मतलब कि अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगा तो फिर प्रोटीन, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट तीनों के अंदर इफेक्ट पड़ेगा और इसका इफेक्ट होता है इट्स रिटार्डेड स्टंट ग्रोथ, येलोइंग ऑफ लीव्स. ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट इज समथिंग दैट मेक्स द लीव्स ग्रीन. अब उसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फिर लीव ग्रीन ही नहीं रहेगा तो फिर लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं प्लस उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है. Phosphorus is its function is conversion of light energy into chemical energy, means it converts light energy into chemical energy. अगर इसकी कमी हो बॉडी के अंदर तो its effect will be early leaf fall, late flowering and slow growth of growth rate. मतलब कि जो लीव्स है वो जल्दी फॉल होने लग जाएंगे. फ्लावरिंग लेट होगी, मतलब कि ऑब्वियसली साल में अगर 2 बार होती है तो एक ही बार होगी तो और वो भी लेट ऑफ सीजन फ्लावरिंग होगी. और स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स बहुत स्लो ग्रो करेगी अगर फास्फोरस की कमी है बॉडी में. तो टॉकिंग अबाउट पोटेशियम, सो इट्स नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. सो अगर पोटेशियम की कमी होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे इफेक्ट पड़ेगा. और इट वीक स्टेम, विल्टिंग ऑफ लीव्स, फेलियर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स. सो स्टेम विल गेट वीक, लीव्स विल गेट विल्टेड और कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्शन है वो नहीं होगा. कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं होगा तो फिर ऑब्वियसली जो एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से जो मिलती है वो प्लांट को नहीं मिलेगी तो इससे ये इंपैक्ट्स पड़ेंगे. टॉकिंग अबाउट मैग्नीशियम, इट प्रोड्यूसेस क्लोरोफिल. प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल का करता है मैग्नीशियम. So if this is deficient, then slow retarded growth and yellowing of leaves. So the growth of plant will be slow or retarded and the leaves will get yellow as chlorophyll is something that gives green color to the
leaves. Iron, it also helps in the production of chlorophyll and the leaves will get yellow. Manganese की बात की जाए तो production of main plant hormone, अगर ये deficient हो manganese, तो retarded growth and spotted leaves, ये वो चीज है जो deficiencies है जिससे इस पे फर्क पड़ेगा. And zinc, if we talk about zinc, तो production of hormones and their intermediates, तो हार्मोन्स जो है और उसके इंटरमीडिएट्स जो है उसको प्रोड्यूस करने के अंदर जिंक हेल्प करता है. एंड इफ दिस इज लैकिंग इन द बॉडी, सो रिटार्डेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स, तो जो ग्रोथ है प्लांट की वो रुक जाएगी और जो लीव्स है वो फिर से येलो होने लग जाएंगे. नाउ ये हुए प्लांट्स की बात. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स. एनिमल्स डोंट क्रिएट देयर ओन फूड. एनिमल्स आर कंप्लीटली हेटेरोट्रोपिक. वी डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर फूड. अब एनिमल्स का जो फूड इनटेक होता है उसकी वेरियस स्टेप्स होती है. Nutrition in animals are done in these 5 steps. First is ingestion. Ingestion is the process in which food is taken in the body. After that, digestion. Digestion के अंदर food जो होता है it's in complex form. उस complex form को simple form के अंदर break किया जाता है during the process of digestion. Absorption के दौरान transfer of soluble food to the blood. मतलब कि जो obviously जो food हमने digest किया है वो जो सोल्यूबल फूड होता है विच इज ऑब्वियसली नेसेसरी फॉर द बॉडी, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन के दौरान. सेकंड प्रोसेस इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी हैव यूटिलाइज्ड, या जो एब्जॉर्प्शन के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है उसका यूटिलाइजेशन होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ assimilation. So utilization of absorbed food by cells and tissues for energy production, growth and repair. अब वो यूज किन चीजों के लिए होता है? एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ और रिपेयर के लिए. एंड द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन. इजेशन इज द प्रोसेस इन विच द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बॉडी इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. अब जो न्यूट्रिशन होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोसेस इन एनिमल्स, वो इन 5 प्रोसेसेस के थ्रू गुजरती है इन एवरी एनिमल. Now let's talk about types of nutrition in animals. कि animals में कौन कौन से types होते हैं nutrition के. First is halozoic nutrition. अब halozoic nutrition जो होते हैं वो multicellular organisms में अलग होते हैं और unicellular organisms में अलग होता है. Now talking about multicellular organisms जो halozoic nutrition को use करते हैं, cockroaches, butterflies, basically the mosquitoes, so they have mouth-like structures. अगर cockroaches की बात की जाए, the butterflies suck on the leaves or the flowers. The butterfly sucks on the flower और उनके एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है. मॉस्किटोज जो होते हैं वो अपनी नीडल को बॉडी के अंदर घुसाते हैं और ब्लड को सक करते हैं. सो दीज ऑर्गेनिजम्स जो और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको दूसरों की बॉडी से सक करते हैं. सो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेलोजोइक न्यूट्रिशन. नाउ दिस थिंग हैपेंस इन multicellular. Now what happens in unicellular organisms. We'll take example of amoeba. अब अमीबा जो होता है ये बेसिकली कोई जो भी फूड पार्टिकल होता है उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है. नाउ इट कैन टेक दैट फूड पार्टिकल इनसाइड इट्स बॉडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इट. मतलब ये यहां से ले सकता है, यहां से ऑब्वियसली एज इट्स अमीबा, और ये एक ही सेल होता है. सो विच एवर पार्ट इट इज कंफर्टेबल इन, तो अमीबा अपने उस पार्ट से उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है. नाउ फूड पार्टिकल एंड दिस इज न्यूक्लियस. अब ये फूड पार्टिकल को इसने अंदर ले लिया है. अब इट एब्जॉर्ब्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द फूड, और अपन उसका जो फूड के जो पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये धीरे धीरे जैसे ही और उसके सारे न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये उसको अपने पोर्स को ओपन करने लग जाता है और आफ्टर अ वाइल जो फूड पार्टिकल है जो बचा हुआ है उसको बाहर निकाल दिया जाता है. एंड देन अमीबा इज फ्री, बट द न्यूट्रिशन दैट वाज इन द फूड पार्टिकल इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय अमीबा. सो दिस थिंग हैपेंस इन हेलोजोइक न्यूट्रिशन.